कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री इन 3 hours, कंप्लीट मिडिवल हिस्ट्री इन 5 hours, नहीं हो सकता। इन द मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड मे दिस विल बी कॉन्स्टेंटली बोम्बार्डेड इन योर फेस कि यार ये देखो करंट अफेयर्स, सारा पॉलिटी का पूरा करंट अफेयर्स मैं 2 घंटे में करा देता हूँ, मैं पूरा पॉलिटी का करंट अफेयर्स जैसे 10 पेज में करा देता हूँ, ये देखो शॉर्ट नोट्स देख लो, इस डॉक्यूमेंट से सब कुछ है। भाई ये मत करना, ठीक है, ऐसे नहीं होता। कोई आपके साथ आके वो डॉक्यूमेंट रीड करके चला जाएगा, आपको लगेगा हाँ मेरा करंट अफेयर्स हो गया है। डोंट चेज फील गुड फैक्टर्स। आई थिंक देयर आर 50-60,000 serious aspirants. These 50-60,000 serious aspirants will study these subjects properly and get about 60 to 70 marks here. यहाँ पे आपको 60-70 मार्क्स लाने वाले लोग मिल जाएंगे। Then you have these subjects where you can create an edge. तो यहाँ पर you can't falter. यहाँ पर अगर आपने falter कर दिया तो वैसे ही गेम खत्म है। Our target in these tests is simple. It is a revision exercise. जो भी आपने पढ़ा है, जो स्टैंडर्ड सोर्सेस हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उन्हीं से क्वेश्चन दिखेंगे आपको। बिकॉज अल्टीमेटली once we start chasing these random questions, तो होता क्या है कि रैंडम क्वेश्चन तो हम बहुत इंफॉर्मेशन अक्यूमुलेट कर लेते हैं, बेसिक क्वेश्चंस हम गलत कर देते हैं, और वो बेसिक क्वेश्चन गलत करके फिर हम प्रीलिम से बाहर हो जाते हैं। रिमेंबर दिस, यू हैव अ एल्डर ब्रदर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू हु इज सिलेक्टेड, हु इज लुकिंग एट योर प्लानिंग एंड योर रिविजन। You can leave these things to me. Hello and welcome to this orientation session, and this is the last batch of Prelims Navigator, the last batch that we are going to do for UPSC Prelims 2026 here at Sarthi IAS, batch 4, and today is the day it starts, and this is the orientation session. So today in this session we are going to discuss how everything is going to run in this batch, how this batch you can make use of this batch in the best manner possible to get and put your best foot forward in the prelims exam. Now, as I'm sure you understand, after today, after the month of January, there is not really any scope for someone to start their prelims prep. So anybody who is starting here today, please understand that you are literally in what is called the last chance saloon. Right after this, I do not think you will have the opportunity to put in the effort, or no matter whatever effort you put in, I don't think you will have the opportunity to put your best foot forward in prelims, barring the fact that you are already a experienced candidate and you've already cleared prelims, फिर अलग बात है। But अगर आप एक normal average candidate हो, somebody who has not mastered prelims completely, कई लोग होते हैं उनको श्योर होता है कि मेरा prelims तो हो ही जाएगा, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, but other than that, everybody other than that, this is the last chance for you to make sure that you get your best foot forward in prelims. ठीक है, अभी भी इस बैच में भी हमारा शेड्यूल काफ़ी टाइट रहेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ऑल ऑफ यू हियर आर पीपल हु आर अ बिट एक्सपीरियंस्ड, एंड इवन इफ यू आर बिगिनर्स, I will expect you to do a little bit more effort than any other person would. See, we started Prelims Navigator in November. So there are people who started in November, there are people who started in December, people who started in the last week of December, and now we have people who are starting in the last week of January. The fact of the matter is that for everybody, the content stays the same, the principles essentially stay the same, and बात यह है यार कि ultimately exam सबका same है, right? Everybody has the same exam also. So ऐसा तो नहीं होगा कि आपने लेट स्टार्ट किया है या आपने जल्दी स्टार्ट किया है तो you will get some advantage or disadvantage. We have to achieve the same things. Now if we are starting today, we have to ensure that we have to put in our best foot forward, and we have to, no matter what happens, ensure that we are at par with everybody else who, let's say, started early as well. ठीक है, so that is the idea here. उस आइडिया को दिमाग में रखते हुए हम इस बैच को हमने डिजाइन किया है. So it will require effort from you, and of course we will put in, I will specifically, and the team here, the complete team of Sarthi IAS will put in whatever effort we can to ensure that you gain the maximum benefit from this course. So I hope you're all ready. I hope you're all excited and you're willing to put in the maximum effort possible, because it will take you that level of effort. Firstly, there are some principles that I want you to keep in mind. ठीक है, these are 5 key principles that you have to keep in mind no matter what. आपने आज से पहले prelims clear किया है, नहीं किया है, जो भी आपकी situation है, these are 5 principles that you cannot forget. ठीक है, firstly, ये principles मैं आपको recommend करूंगा that you write these principles on a piece of paper, and wherever you study, be mostly लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं या अपने घर पे, there is a specific corner where you study, अपनी टेबल के सामने ये चीजें चिपका लो. Right? Firstly, we will not gamble on elimination.
प्रीलिम्स इज नॉट अ गेम ऑफ एलिमिनेशन। आप कितनी भी एलिमिनेशन टेक्निक सीख लो, आप कितनी भी एक तुक्काबाजी कह लो उसको या एक तिगड़म कह लो, वो आप सीख लो, इट इज अ गेम ऑफ कंटेंट। नॉलेज बीट्स एलिमिनेशन एवरी सिंगल टाइम। ऐसा नहीं कह रहा हूँ एलिमिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, एलिमिनेशन इज probably important when we have to get from 90 to 100 marks, when we have to get from 100 to 110 marks. So we will teach you elimination also here, but this should not be your first resort. It should always be your last resort. हमेशा ये लास्ट चीज होनी चाहिए दैट यू डू, नॉट द फर्स्ट थिंग दैट यू डू। ठीक है, तो प्लीज इस बात को याद रखना। सेकंड, इसी इंपॉर्टेंस वाली चीज में, जो नॉलेज वाली चीज है, उसी में एक बात याद रखेंगे, दैट स्टैटिक कम्स फर्स्ट, देन कम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड देन कम करंट अफेयर्स। ठीक है, स्टैटिक फर्स्ट, पीवाईक्यू सेकंड, करंट अफेयर्स थर्ड, ऑलवेज इन दिस ऑर्डर। अगर कुछ मिस होना है राइट, तो करंट अफेयर्स मिस होना चाहिए। आइडली कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, हम ट्राई करेंगे हम कुछ भी मिस ना करें, बट समटाइम्स द सिचुएशन इज सच दैट वी कांट रियली कंट्रोल दीज थिंग्स। सो व्हेन यू हैव टू प्रायोरिटाइज इन योर हेड, always static should be number 1, PYQ should be 2 and current affairs should be 3rd. That is how things are. ऐसा हो सकता है कि कोई बिल्कुल भी current affairs ना पढ़े, somebody doesn't read current affairs at all and they still clear prelims, but rarely ever, if ever, you will find somebody who has never studied static properly and cleared prelims, right? So this comes first, always remember that. Then every subject matters, right? हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन करेक्ट करके +2 ही मार्क्स मिलते हैं, right? So please understand, we don't need to over focus on any subject, we also don't need to under focus on any subject. अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, the idea should not be कि हमने पॉलिटी इतनी बार पढ़ ली कि यार अब मुझे इसमें नॉर्मली मैं इसमें 7 out of 10 क्वेश्चन सही करता, बट अब मैंने इतनी रिवाइज कर लिया कि अब मैं 9 out of 10 सही करूंगा। दिस इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी, especially when we are starting at this stage. The strategy should be to have a good number of marks in each subject. See, ultimately whatever has been UPSC's pattern in the last 5 years, 100 marks तो कट ऑफ नहीं जा रहा है, 100 marks के कम हो सकता है, 100 marks के ऊपर तो नहीं है। तो हम मान के चलते हैं अगर हमारे 100 marks आ गए तो हम बहुत सेफ हैं। So 100 marks is 50%। ठीक है, ओके। सो वंस यू कम टू दिस थिंग, लेट्स से मैं सारे सब्जेक्ट्स का नाम यहाँ पे लिखता हूँ, आई राइट द नेम ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स एंड दिस इज समथिंग ऑल ऑफ यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये सब्जेक्ट हैं पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इन सब्जेक्ट से जनरली देर आर अबाउट 35 के आसपास सॉल्वेबल क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चंस हियर आर 50 to 55, बट 35 होते हैं जो आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। एनी सीरियस एस्पिरेंट हु हैज स्टडीड द बेसिक सोर्सेज प्रॉपर्ली, दे शुड बी एबल टू सॉल्व 35 क्वेश्चंस हियर, राइट? सो दिस विल शुड गिव अस अबाउट 70 मार्क्स। एक आधा आप तुक्का मारोगे, कुछ आपका नेगेटिव होगा, वो सब ऑफसेट हो जाएगा। 70 मार्क्स, 65 to 70 मार्क्स वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दीज 4 सब्जेक्ट्स। ठीक है, नाउ देयर आर सम अदर सब्जेक्ट्स दैट पीपल डोंट फोकस ऑन, वो मैं लिखता हूं और आप मुझे बता सकते हो कि आपने आज तक इन पे कितना फोकस किया है। मैपिंग, आर्ट एंड कल्चर इंक्लूडिंग एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है, वी कॉल दिस एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, हम इसे एमैक बोलते हैं यहाँ पे फॉर फ्यूचर रेफरेंस, राइट? आईआर, साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट। Now these subjects of course have a greater weightage of current affairs, but they are not only current affairs. ठीक है, इन सब्जेक्ट से अगर आप देखोगे there will again be 45 to 50 questions, but an average aspirant here is hardly getting 10-12 marks from these subjects, and that is why we are stuck at a level of 80-85। कट ऑफ 90 है, हमारे 85 आ रहे हैं, कट ऑफ 88 है, हमारे 84 आ रहे हैं। Here also there are at least 20 solvable questions. So the goal has to be constant. In 20 solvable questions से हमें 40 marks लेने हैं। 65 to 70 marks here, 35 to 40 marks here, and the goal is to cross 100 marks. This thing you have to keep in mind throughout your preparation. जब भी आप कोई भी subject पढ़ रहे हो, this maths has to be in your mind. And I'm sure if you are, at this stage, बहुत लोगों ने कहा we have prior experience in prelims, तो आप मुझे बता सकते हो, इज दिस करेक्ट इन लाइट ऑफ योर प्रायर एक्सपीरियंस? क्या ऐसा ही होता है कि मोस्टली लोगों का क्या होता है कि यहां पर तो फिर भी दे आर एबल टू परफॉर्म वेल इन दिस
part of the exam, here they will still perform decently, but here you will lag a lot, and that is the gap that we generally have, right? Anybody who has attempted seriously in the last 2-3 years, they will, I'm sure, agree with this analysis. ठीक है? So if this is our problem, we are going to solve this problem properly, right? Especially in the upcoming years, or if you look at the recent trends, these subjects have become very important. Maze वाले subjects कहते हैं, we call this maze. If you spell this MAISE, we call this maze here. Maze has become probably the factor that decides whether you will clear prelims or not. ठीक है? अब यहां पर हमें 40 मार्क्स लेने हैं, यहां पर हमें 80 मार्क्स नहीं लेने हैं, यहां हमें 45-50 में से 50 के 50 सही नहीं करने हैं. We just have to be better than others. The entire principle here is be better than others. ये मैथ्स और ये अंडरस्टैंडिंग मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में रखो. ठीक है? दिस इज द मेथोडोलॉजी एंड द माइंडसेट आई वांट यू टू कीप, कि हम बाकी लोगों से बेटर हो जाएं. इसके लिए अब इस लाइन को दोबारा पढ़ो. एवरी सब्जेक्ट मैटर्स. तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटी में मान लो आज की डेट में आपकी परफॉर्मेंस 7 आउट ऑफ 10 है, और साइंस एंड टेक में मान लो आपकी आज की परफॉर्मेंस 1 आउट ऑफ 10 है, तो अब आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए? ऑब्वियसली आपको साइंस एंड टेक पढ़ना चाहिए, क्योंकि 1 से 5 जाना ईजी है, 7 से 9 जाने में आपको बहुत एफर्ट लगेगा. सो वी विल मेक अ स्ट्रैटेजी फॉर आवरसेल्व्स एंड वी विल एग्जीक्यूट दैट स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली. हम उसी हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करेंगे कि यार मैं इस मैथ्स में फिट बैठूं. दिस इज हाउ द ट्रेंड हैज बीन. कुछ बिल्कुल ही अलग कर दिया यूपीएससी ने इस बार, तो फिर तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, बट रीजनेबली वी कैन से दैट दिस इज द ट्रेंड वी आर गोइंग टू फॉलो. ठीक है? अब इन दिस परस्यूट देयर शुड बी नो शॉर्टकट्स. अभी शुरू हो गया है वैसे, ठीक है? यूट्यूब पे शुरू हो गया है, अभी और शुरू होगा मार्च में. अप्रैल में तो इट विल गेट फ्लडेड. आपने भी देखी होंगी लास्ट ईयर्स में ऐसी वीडियोस, कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री इन 2 आवर्स. ठीक है? कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री इन 3 आवर्स, कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री इन 5 आवर्स. नहीं हो सकता. ठीक है? यू कैन रिवाइज एंशिएंट हिस्ट्री इन 4-5 आवर्स. यू कांट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री इन 2-3 आवर्स. एक और नया ट्रेंड शुरू हुआ है अभी रिसेंटली, कंप्लीट करंट अफेयर्स. क्या करो? आओ और पीडीएफ को रीड कर दो. ठीक है? डोंट हैव दिस शॉर्टकट. ठीक है? ये शॉर्टकट आपको फॉलो नहीं करना है. नो मैटर व्हाट हैपेंस, ये शॉर्टकट फॉलो नहीं करना है. ऐसे नहीं निकलता है प्रीलिम्स. ठीक है? इट इज द टफेस्ट एग्जाम इन द कंट्री. इट इज एन एग्जाम दैट मेक्स ब्यूरोक्रेट्स. सो उस लेवल की पढ़ाई हमें करनी पड़ेगी. ये शॉर्टकट्स से हमें दूर रहना है. यू आर माई स्टूडेंट, सो आई एम टेलिंग यू दिस. अभी शायद आपको ये बात उतनी हिट नहीं कर रही हो, बट इन द मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड मे दिस विल बी कॉन्स्टेंटली बोम्बार्डेड इन योर फेस कि यार ये देखो करंट अफेयर्स, सारा पॉलिटी का पूरा करंट अफेयर्स मैं 2 घंटे में करा देता हूँ. ठीक है? मैं पूरा पॉलिटी का करंट अफेयर्स जैसे 10 पेज में करा देता हूँ. ये देखो शॉर्ट नोट्स देख लो, इस डॉक्यूमेंट से सब कुछ है. भाई ये मत करना. ठीक है? ऐसे नहीं होता. कोई आपके साथ आके वो डॉक्यूमेंट रीड करके चला जाएगा, आपको लगेगा हाँ मेरा करंट अफेयर्स हो गया है. डोंट चेज फील गुड फैक्टर्स. फील गुड फैक्टर्स बहुत होते हैं जिसमें आपको लगेगा अच्छा, यू विल फील गुड कि अरे मेरा तो करंट अफेयर्स बहुत जल्दी हो गया. इनको चेज नहीं करना है. ठीक है? यहाँ बहुत गलतियां होती हैं लोगों से. एंड लास्टली, प्लान्ड प्रेपरेशन नॉट रैंडम प्रेपरेशन. एनालाइज वॉट एवर हैज गॉन रॉन्ग इन योर प्रीवियस अटेम्प्ट. ऐसा नहीं होगा कि आप लास्ट अटेम्प्ट में आपने कोई गलती नहीं करी होगी. इफ यू वॉन्ट माई हेल्प इन एनालाइजिंग स्टफ, you can go to, and I would recommend कि आज once you are starting your prelims prep, you should start here. Go to YouTube. I'll just show you the video I'm talking about. इस YouTube चैनल पे जाइए. ठीक है? थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा. ये वाली वीडियो देखो. ये देख रहे हो? ये this video. I want you all to watch this video. It is a 15-minute video only. ठीक है? इस वीडियो का जब आप देखोगे तो इसमें एक सॉफ्टवेयर रेकमेंड किया गया है. वो सॉफ्टवेयर क्या है वो दिखाता हूं. यू देन गो टू माई वेबसाइट विच इज drshivan.com. ठीक है? यहां जाइए और यहां जाइए प्रीलिम्स एनालाइजर पे. दिस विल हेल्प यू एनालाइज योर परफॉर्मेंस इन द प्रीलिम्स 2025 पेपर.
तो जैसे मान लीजिए मैं किसी भी, जैसे आईआर के क्वेश्चंस में एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है, सो इफ आई एम एनालाइजिंग द आईआर क्वेश्चंस, इट विल गिव मी अ कंप्लीट फीडबैक कि यार कहाँ कहाँ गलती हुई थी, क्यों हुई थी, वीडियो देखोगे समझ आ जाएगा। यूज दिस बिफोर यू स्टार्ट एनी सब्जेक्ट। आज हम इकोनॉमी और मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं। प्लीज यूज दिस बिफोर यू स्टार्ट एनी सब्जेक्ट। यू स्टार्ट इकोनॉमी एंड मॉडर्न हिस्ट्री, फर्स्ट यूज दिस, एनालाइज योर प्रेप, सी वट एवर यू डिड लास्ट ईयर, एंड जो गलतियां हुई उनको हम यहाँ पर करेक्ट करेंगे, ठीक है। वी विल नॉट प्रिपेयर इन अ रैंडम मैनर, ओके। नाउ ये हमने बात कर ली, वी हैव टू बी वन स्टेप अहेड। ये सब पढ़ के जा रहे हैं तो हमें इसमें तो मास्टरी चाहिए। एवरीबडी इज स्टडिंग दिस, एवरीबडी, एनी सीरियस एस्पिरेंट। 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख लोग अटेम्प्ट करते हैं, मुझे लगता है सीरियस लोग होते हैं 50-60 हजार। दैट इज जस्ट अ एस्टिमेट गेस, देयर इज नो साइंस बिहाइंड इट, बट आई थिंक देयर आर 50-60,000 serious aspirants. These 50-60,000 serious aspirants will study these subjects properly and get about 60 to 70 marks here. यहाँ पे आपको 60-70 मार्क्स लाने वाले लोग मिल जाएंगे, ठीक है। देन यू हैव दीज सब्जेक्ट्स वेयर यू कैन क्रिएट एन एज। तो यहां पर यू कांट फॉल्टर। यहां पर अगर आपने फॉल्टर कर दिया तो वैसे ही गेम खत्म है। मास्टर दिस, बी गुड एट दिस, ओके। मास्टर दिस, बी गुड एट दिस, दैट इज द स्ट्रेटेजी वी आर गोइंग टू फॉलो, ओके। नाउ इन वट एवर प्लेस यू हैव टेकन योर कोचिंग बिफोर दिस, कभी किसी फाउंडेशन कोर्स में कहीं पे, आई एम श्योर कि ये सब्जेक्ट्स तो कवर हुए होंगे। एंड आई एम ऑल्सो अज्यूमिंग फॉर यू दैट यू हैव रेड दीज सब्जेक्ट्स एट सम लेवल। एक डिसेंट लेवल पे आपको आता है, ऐसा नहीं है कि आप पॉलिटी अभी स्टार्ट कर रहे हो, राइट। यू हैव अ डिसेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, बट दीज सब्जेक्ट्स यू डोंट हैव एन अंडरस्टैंडिंग इन। अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, राइट। इज दिस अ फेयर असेसमेंट ऑफ योर सिचुएशन कि यहां पर आपको एक डिसेंट अंडरस्टैंडिंग है इन सब्जेक्ट्स में, बट वहां आपको बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं है। अब नाउ अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को डिजाइन कैसे किया गया है वो आप समझ लो। इफ यू विल अंडरस्टैंड हाउ, आई एम द वन हु हैज डिजाइंड दिस प्रोग्राम, इफ यू अंडरस्टैंड हाउ दिस प्रोग्राम हैज बीन डिजाइंड, यू विल बी एबल टू मेक यूज ऑफ दिस प्रोग्राम एज वेल, राइट। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग टुडे ऑन ट्यूजडे। मैं यहाँ पे डेज ऑफ द वीक लिख लेता हूं, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग टुडे ऑन ट्यूजडे। लेट्स से आपने ट्यूजडे से रीड करना स्टार्ट किया, यू विल हैव योर डेली टारगेट्स एवरी सिंगल डे। आपको एक डेली टारगेट दिया जाएगा, जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोग्राम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आपको रोज एक डेली टारगेट मिल जाएगा। आज का टारगेट भी आपको मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। एंड यू विल गेट अ वीकली प्लान। आपके लिए एक कस्टमाइज्ड स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे एक वीकली प्लान स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नाउ आई एम श्योर, एंड अगेन आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस बिकॉज आई वांट अस टू बी ऑन द सेम पेज। ये एक मेजर प्रॉब्लम रहती है कि हमें प्लानिंग का इशू रहता है कॉन्स्टेंटली, है ना। देयर इज अ प्लानिंग इशू कि यार अच्छा ये सब्जेक्ट ये खत्म हो गया, इसमें वो पार्ट रह गया है, वो पार्ट मैं कब पढ़ूंगा, ये मैं कब पढ़ूंगा, आज मैं इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ, मेरा मॉडर्न हिस्ट्री कब होगा, डू आई हैव इनफ टाइम फॉर इट। मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो मेरा साइंस एंड टेक कब होगा, डू आई हैव टाइम टू इट। रिवाइज कब होगा, करंट अफेयर्स कब होगा, पीवाईक्यूज कब होंगे, सीसैट कब होगा। ये एक कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम है, something that you have always experienced. This is something that we always experience and takes up a lot of our time, takes up a lot of our mental space also. Mentally भी हमें बहुत परेशान करती है ये प्रॉब्लम, राइट। आई एम श्योर यू हैव एक्सपीरियंस दिस बिफोर। इस प्रॉब्लम को यहां पर खत्म कर दिया गया है। वी हैव डिसाइडेड दैट दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम दैट यू गाइज आर गोइंग टू फेस। देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है। द बेस्ट वे वुड बी इफ यू वुड हैव हैड एन एल्डर ब्रदर। आपका कोई एल्डर ब्रदर होता, ठीक है। होपफुली वो सिलेक्टेड होता जिसने खुद प्रीलिम्स में अच्छे नंबर ले रखे हों, ठीक है। और वो आपके लिए पूरी प्लानिंग कर देता और आपको कहता बस यार प्लान मैं बना रहा हूं, सब कुछ मैं देख रहा हूं, सब कुछ कवर कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बस एग्जीक्यूट करो, शो अप एंड स्टडी, यू जस्ट नीड टू डू दिस। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, प्लानिंग, आगे पीछे देखना, करंट अफेयर्स कब होगा, पीवाईक्यूज कब होगा, ये मेरा काम। एंड
if that person would also help you in revision through active recall, this would be a very good solution. That is exactly what we are doing here. I am not your elder brother, let's be honest, but I would try to play that role. I would try to, as much as I can, help you like I would help my younger brother or my younger sister. So I would like to help you like this. Elder here does not mean that I am older than you. Some of you might be older than me. The only thing here it means here is that I probably have some experience in this examination that you have not had yet, right? So the idea here is the same, that I am here for you to plan everything for you day by day. आपको नहीं सोचना कि यार मेरा साइंस एंड टेक कब होगा, मेरा एनवायरनमेंट कब होगा, ये आपको नहीं सोचना है. जस्ट शो अप एंड एग्जीक्यूट. सो हाउ डज दिस प्रोग्राम रन? अभी तक आप बाकी बैचेस के स्टूडेंट से भी बात कर सकते हो, एंड वी हैव बिन एग्जीक्यूटिंग दिस एंड प्लानिंग दिस इमैक्युलेटली. सो द आइडिया इज सिंपल. यू विल गेट अ वीकली प्लान. आपको पहले एक वीक का प्लान मिल जाएगा, ये मैं बनाता हूं आपके लिए, और आपको एक डेली प्लान मिल जाएगा कि डेली बेसिस पे ये करना है. So the weekly plan would say, let's say it will start from today and it will say, यार next week में, in the next week, finish these things. Daily plan would say, okay, today, these are the things I have to study. These are the tests that I have to give. These are the classes that I have to watch. Detailed plan जिसमें सब कुछ लिखा है. ठीक है. What is your job? आज Tuesday है, आपने Tuesday start किया. ठीक है. You started reading from today. ठीक है. आपने आज का टास्क कंप्लीट किया. आप वेंसडे गए, कल का दिन आया, वेंसडे आया. वॉट एवर यू रेड ऑन ट्यूजडे, देर इज गोइंग टू बी अ टेस्ट हियर ऑफ वॉट एवर यू हैव रेड द प्रीवियस डे. आपने ट्यूजडे को जो पढ़ा था उसका वेंसडे को टेस्ट है, एंड यू वुड एग्जीक्यूट द टारगेट्स ऑफ वेंसडे. ठीक है. अब जो आपने वेडनेसडे को पढ़ा उसका टेस्ट है ऑन थर्सडे. अगेन देर इज अ टेस्ट एंड यू वुड एग्जीक्यूट द टारगेट्स ऑफ थर्सडे. तो ऐसे डेली बेसिस पे you are going to have one test. On daily basis, every single day, there is going to be one test that we will take. So मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करता हूँ. Daily test. This daily test will be 25 MCQs. आधे घंटे से ज़्यादा यहाँ पे टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है. But this is what you need to follow. 25 MCQs का daily test ये आपने फॉलो करना है. Okay? Done? Understood? ठीक है. अब you were reading for the whole week. आप पूरे हफ्ते पढ़ाई कर रहे हो. मंडे आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आप पढ़ाई करते रहोगे. ऑन संडे यू आर गोइंग टू हैव अ टेस्ट ऑफ वॉट एवर यू हैव स्टडीड इन द होल वीक. जो पूरे वीक में आपने पढ़ा है उसका आपका एक टेस्ट होने वाला है ऑफ 100 MCQs. प्रॉपर फुल लेंथ टेस्ट ऑफ वॉट एवर यू हैव स्टडीड इन दिस वीक. नॉर्मली इन टेस्ट सीरीज दैट आई हैव ऑल्सो अटेम्प्टेड व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, देयर इज अ टेंडेंसी टू मेक द टेस्ट एक्सेसिवली टफ. वो यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको. We are not trying to copy UPSC in any of our tests because हमें लगता है वो हमसे बहुत एबल हैं, हम उनको कॉपी नहीं कर सकते. Our target in these tests is simple. It is a revision exercise. जो भी आपने पढ़ा है, जो स्टैंडर्ड सोर्सेस हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उन्हीं से क्वेश्चन दिखेंगे आपको. Because ultimately once we start chasing these random questions, तो होता क्या है कि रैंडम क्वेश्चन तो हम बहुत इंफॉर्मेशन अक्यूमुलेट कर लेते हैं, बेसिक क्वेश्चंस हम गलत कर देते हैं, और वो बेसिक क्वेश्चन गलत करके फिर हम प्रीलिम से बाहर हो जाते हैं. आई डोंट वांट दैट फॉर एनी ऑफ माय स्टूडेंट्स. आई वांट दैट ऑल ऑफ यू शुड गेट योर बेसिक्स राइट, योर स्टैंडर्ड बुक्स, योर बेसिक कंटेंट यू शुड गेट राइट. अगर वो होगा तो वैसे भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा इफ इट्स देयर फॉर एवरी सब्जेक्ट. ठीक है. सो वट एवर हैपन्स इन द होल वीक, 100 MCQs हियर. ये हो गया. नाउ देयर आर 3 things that you will need more than this. Number 1, you would need some revision methodology and you would need some guidance. And ultimately हमें पता है हम खुद से नहीं पढ़ते, बहुत मुश्किल है खुद से खुद को डिसिप्लिन रखना. So every Tuesday, like we are having this session, every Tuesday I am going to meet you and I am going to revise things with you. We are going to do it through active recall. Whatever you have read in the last week, उसमें कुछ common concepts जिन पे question ज़्यादा आ सकते हैं. Active recall of everybody in one chat and revising in a comparative environment. That is what we are going to do. So complete revision and guidance happens with me. मेरे mentorship sessions में यही होता है जो अभी हो रहा है. जैसे मैं आज आपको strategy समझा रहा हूँ, उन सारे sessions में मैं कुछ ना कुछ आपको समझाऊंगा. For example, how to analyze a test.
फॉर एग्जाम्पल हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। ये सेशंस, इसमें से कुछ सेशंस they will be visible on your portal. I'll tell you how to access them, and some you have, and from next Tuesday you have to come live and watch them with me. ठीक है, so this happens here. आपका प्लानिंग, जो अगले वीक का प्लान है, इस वीक के प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो सब यहाँ पे हो जाएगा। आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, पढ़ना है और टेस्ट देना है, तीसरा आपका काम नहीं है। ठीक है, दिस हैपेंस एवरी ट्यूसडे। द सेकेंड थिंग यू वुड नीड इज टू लर्न सम लॉजिकल गेसिंग टेक्निक्स। वी डोंट कॉल इट एलिमिनेशन, वी कॉल इट लॉजिकल गेसिंग। We will make a guess sometimes, but that has to be on the basis of logical guessing. इसको हम कैसे solve करते हैं? That you are going to have a session with Varun Jain sir. This session with Varun Jain sir will be held every Thursday. Okay. And what is he going to do here? 50 MCQs are going to be there. Completely new MCQs other than the test. जो test कर चुके हो same नहीं, अलग MCQs होंगे 50। और इन 50 MCQs में आप क्या करोगे? इन 50 MCQs में you are going to understand the techniques of making these logical guesses. आपकी रिविजन तो हो ही रही है। These 50 MCQs are also from whatever you have studied in the last week. टॉपिक्स वही हैं जो आपने लास्ट वीक में पढ़े हैं, but you are going to learn how to make intelligent guesses. Then thirdly, major चीज रह गई PYQ. So every Saturday you are going to have a PYQ session with Sajal sir. Whatever you have studied in the last week, उसके जितने PYQs आए हैं वो सारे PYQs डिस्कस होंगे on Saturdays. तो ये तीन चीजें सॉर्ट हो गई। Now what I do in these active recall sessions, that is something we miss out when we are preparing by ourselves. अभी तो आप स्टार्ट कर रहे हो, let's say आपने इकोनॉमी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, 5 weeks into the program you would have read economy, modern history, science and tech and environment, let's say. तो अब उसके बाद जो एक्टिव रिकॉल होगा उसमें चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। So it's not like active recall is not just whatever you studied last week. It can be anything. It is a random revision process. इतनी बार उसको रिवाइज कर लो कि वो static facts भूले ही ना। That is the idea here. This is how it's going to run. Now I still think 2 things are left that I'm thinking you'll be worried about. पहला है यहाँ पे current affairs. So current affairs is something that is left. अब current affairs में there are 2 people here. Firstly, I will be teaching you current affairs of science and tech, environment and economy. Definitely the most important subjects of current affairs, right? इनका पूरा current affairs, the ideology is simple. हिंदू में जो भी आया है in the last 1.5 years हम कवर कर लेंगे। इससे ज्यादा अगर हम करने जाएंगे तो बहुत बल्कि हो जाएगा, इससे कम हम करेंगे तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, right? So science and tech, environment, economy, complete current affairs of last 1.5 year I am going to teach. Whatever is left, जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है करंट अफेयर्स, मुदित जैन सर इज गोइंग टू टीच यू। इसकी कुछ क्लासेस ऑलरेडी आपके पोर्टल पे आपको दिख जाएंगी, रिमेनिंग दे विल हैपन लाइव। क्लास कब क्या होगी, क्या टाइमिंग है, उसकी भी बात करते हैं। अभी पहले फिलॉसफी समझ रहे हैं। करंट अफेयर्स हो गया, स्टिल वन थिंग इज लेफ्ट एंड दैट इज सीसैट। सो सीसैट में वी हैव राम मोहन पांडे सर हियर. Ram Mohan Pandey sir is going to cover the entire gamut of CSAT PYQs and whatever concepts you need. Sir is a MSc from IIT Roorkee, so maths comprehension not going to be a problem. तो CSAT भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं completely. You don't need to go anywhere else, including tests of CSAT. ठीक है, ये भी कवर हो गया. Now some of you will come to that. Some of you might need additional guidance in these subjects, right? इनका कंटेंट आपको चाहिए होगा, इसकी बात हम अभी करते हैं, कंटेंट की बात हम अभी करते हैं. बट दिस एंटायर थिंग इज क्लियर. दिस इज हाउ वी हैव प्लान्ड. सो आई विल जस्ट रिपीट. आपने यहां से पढ़ना स्टार्ट किया ऑन ट्यूसडे, आपने 1 हफ्ता पढ़ा, रोज डेली टेस्ट हो रहा है. सैटरडे और संडे को उसका फुल वीक का टेस्ट हो रहा है. नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को उसकी रिविजन हो रही है एक्टिव रिकॉल के थ्रू. नेक्स्ट वीक थर्सडे को उसके लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन हो रहा है, जहां आप लॉजिकल गेसिंग उन्हीं टॉपिक्स का सीख रहे हो. और नेक्स्ट वीक सैटरडे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उन्हीं टॉपिक्स के कर रहे हो, ताकि आपके पीवाईक्यूज भी एक बारी में रिवाइज हो जाएं. आफ्टर दिस देयर शुड बी नो इशू व्हाटसोएवर इन योर रिविजन प्रोसेस. सीसैट कवर्ड है, करंट अफेयर्स कवर्ड है. एवरी वीक यू आर ऑल्सो मीटिंग मी फॉर स्ट्रैटेजी, फॉर गाइडेंस, फॉर प्लानिंग, फॉर डाउट्स, फॉर इशूज, फॉर अगर कभी बैकलॉग आ गया, कुछ डिफिकल्ट हो गया, कुछ मैनेज करना है, एनीथिंग दैट यू नीड टू मैनेज, आई एम हियर फॉर यू. ठीक है, एंड आई एम मेकिंग द प्लान फॉर यू एंड आई एम कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग एंड
ensuring that you don't have to do anything other than execution. Your job is to show up and execute. That is it. Everything else is my job or our job. Is this clear? This is the philosophy behind this program. सब कुछ हम कर लेंगे. You just come, study, show up. मत सोचो क्या पढ़ना है, मत सोचो PYQ कब होंगे, मत सोचो CSAT कब होगा, मत सोचो करंट अफेयर्स कब होगा. वो हमारा काम है. 25 MCQ का कोई सेशन नहीं है तरुण. 25 MCQ का टेस्ट है. There is a test of 25 MCQs, not session of 25 MCQs. We can't do a 25 MCQ session every day. इतना टाइम होता नहीं है दिन में. ठीक है? This is the idea. So now when you read this, you will understand there is a mentorship session with me, PYQ session with Sajal sir, live MCQ practice with Varun sir, test series along with daily tests. Okay, current affairs covered, CSAT covered. Now, many of you are in different versions of this program. आपने देखा होगा ये अलग अलग versions हैं. Now, versions are designed for different types of students. Okay. हमारा लॉजिक क्या था इन वर्जन्स को डिजाइन करने का वो भी मैं आपको बता देता हूं, सो दैट यू नो यू आर इन द करेक्ट वर्जन एंड इफ यू वांट टू स्विच फ्रॉम वन टू द अदर यू कैन डू दैट टुडे. बेस वर्जन वी डिजाइन फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने सारा कंटेंट पढ़ा हुआ है, जिनको सिर्फ ये चीज चाहिए जो यहाँ लिखी है. ओनली वॉट एवर इज रिटन हियर, दिस इज वॉट द रिक्वायरमेंट इज. उन्हें कॉन्टेंट नहीं चाहिए. दे हैव ऑलरेडी रेड एवरीथिंग, बट हाँ दे probably don't need the content but they need these things. Plus version is something that we design for specially those students जिनको ये मेज सब्जेक्ट्स में दिक्कत है, जिनको यहाँ पर दिक्कत है, इनके लिए हमने ये डिजाइन किया कि यार यू हैव अ प्रॉब्लम हियर. ठीक है, एंड सिंस यू हैव अ प्रॉब्लम हियर, लाइव लेक्चर्स ऑफ मैपिंग, आर्ट एंड कल्चर, IR एंड एनवायरमेंट आर इंक्लूडेड हियर. साइंस एंड टेक लाइव लेक्चर्स आई हैव जस्ट फिनिश्ड, तो उसकी रिकॉर्डिंग इज इंक्लूडेड हियर. दिस ईयर्स करंट ईयर्स लेक्चर्स. Okay, so we include maze lectures here and we also include content lectures of polity, economy, geography and modern history. अब ये क्या है, ये जो polity, economy, geography और modern history के lectures हैं, these are not class wise. आप साइंस एंड टेक के lectures खोल के देखोगे, आपको दिखेगा class 1, class 2, class 3, class 4. जब आप ये खोल के देखोगे तो आपको class wise lectures नहीं दिखेंगे. You will see lectures that are topic wise. जहां जहां दिक्कत आ रही है, जैसे मान लो आपने कहीं से भी इकोनॉमी पढ़ा हो बट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग और यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ इन्फ्लेशन और मनी, तो टॉपिक वाइज लेक्चर्स हैं. आप वो टॉपिक वाइज लेक्चर्स ऑन योर पोर्टल, दे आर ऑलरेडी अपलोडेड. ठीक है, ऐप पे देखोगे टॉपिक वाइज लेक्चर्स हैं. इकोनॉमी के लेक्चर स्टार्ट होंगे, दे विल स्टार्ट विद ओके पॉवर्टी, देन अनएम्प्लॉयमेंट. जहां जहां डाउट है वहां वहां देखना है. प्लीज डोंट ट्राई एंड वॉच दीज कंप्लीट लेक्चर्स. पूरे लेक्चर्स देखने का कोई पॉइंट नहीं है, स्पेशली अब टाइम नहीं है इस काम के लिए. बट हाँ, कहीं कहीं डाउट हो सकता है. इसमें इकोनॉमी के लेक्चर्स मेरे हैं, पॉलिटी के लेक्चर्स एमपुरी सर के हैं, ज्योग्राफी के लेक्चर्स पल्लवी मैम के हैं एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स जसलीन मैम के हैं. एज फार एज मेज इज कंसर्न्ड, मैपिंग के लेक्चर्स विल बी लाइव बाय पल्लवी मैम, आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री विल बी लाइव बाय जसलीन मैम, IR will be live by Varun sir, science and tech will be my lectures of science and tech of this year, recorded and uploaded on your portal. Environment I will be taking live. ठीक है, this is the idea. Now prime version we designed for those people who also need somebody to speak to, especially if you're in a place where let's say you don't have aspirants around you, you need somebody to constantly speak to you, motivate you. You need mentorship by this one person कि यार मेरे को बात करने के लिए कोई चाहिए constantly, because I tend to get distracted और ये plan follow करने में मुझे दिक्कत हो सकती है. I might have some personal needs why I need to speak to somebody else. For that we have designed and included one-on-one mentorship here. So know which version you are in and know what it was designed for. Okay. Up. Now if you have understood the philosophy behind this program and you've understood how we are going to cover this program, तो पहले हम एक काम करते हैं, हम अपना एक schedule देखते हैं. Let us look at our schedule for the next 3 months. After today there will be no discussion on this schedule. आज के बाद इस schedule पे कोई discussion नहीं होगी. आज के बाद इस schedule पे सिर्फ weekly discussion होगी. I don't want कि आप अपना time इस schedule पे लगाओ. As you can see, I have planned the schedule till May 2026, including your revision days. ठीक है,
इंक्लूडिंग एवरी डे आप क्या पढ़ने वाले हो, इट इज कंप्लीटली प्लान। मैं एक बार दिखाऊंगा आपको, इट इज देयर विद मी, रेस्ट यू जस्ट ट्रस्ट इन द फैक्ट कि हाँ मैं करवा दूंगा। आप अपने आज का काम कंप्लीट करो, जो आज काम है उस पर फोकस करो, प्लानिंग में शेड्यूलिंग में टाइम वेस्ट मत करो। फर्स्ट क्वेश्चन टू यू बिफोर आई शो यू दिस शेड्यूल। कब है, कब है प्रीलिम्स? कब है भाई प्रीलिम्स? वेरी गुड। नहीं, ये कौन है 24 में वाला? 24 में को नहीं है भाई, गेट विद द प्रोग्राम, इट इज नॉट ऑन 24 में। ठीक है, बाकी लोग भी बता दो कब है। इट इज नॉट ऑन 24 में। So please understand this. Okay, that's why I asked this question, so that I have to explain this. UPSC's date is 24th May. As per UPSC, prelims will happen on 24th May. ठीक है, this is UPSC's date, but we are not following this date. See, our idea is we will ensure that we trick our subconscious mind by telling our subconscious mind that prelims is on 31st March. Why this date of 31st March? Because the idea is to finish everything, which is most of the things that are important for prelims by 31st March. I am saying 31st March because the plan is that by 31st March, we will be finishing everything. इस डेट को हम 31st March को सब कुछ खत्म करेंगे. We will finish everything by 31st March. Okay? Because why then 31st March? Because in the months of April and May, we are going to have a 2-cycle revision. How does that happen? मैं बताता हूं। मान लो एक बार कि 31st मार्च को सब कुछ खत्म हो चुका है, तो 1st अप्रैल से क्या करेंगे? First 3 days we will revise economy. So we will revise economy now in 3 days. Then polity in 3 days, then geography in 3 days, then science and tech in 3 days, then modern history in 3 days, environment in 3 days, IR in 3 days, AMAC in 3 days, mapping in 3 days. Done. तो 27 तक we are going to have 1 cycle of revision by 27th April. ये हो गया? चलो ठीक है। Now let me go to the second cycle of revision. अब मैं रिवाइज करूंगा हर सब्जेक्ट in 2 days. So economy in 2 days, polity in 2 days, geography and mapping in 2 days, science and tech in 2 days, modern history in 2 days, environment in 2 days, IR in 2 days, AMAC in 2 days. Then I'm going to revise every subject in 1 day. एक एक दिन करके मैं रिवाइज करूंगा। 1 day for economy, 1 day for polity, 1 day for geography, 1 day for science and tech, 1 day for modern history, and finally once we complete all of this, we will automatically reach the date of 24th May. So in April and May, I want all of you to revise everything 3 times. Right? Mostly problem क्या होती है prelims में? Another problem that I'm sure all of you would also agree with, that in the last few months we are very confused. इस टाइम पे पता चलेगा कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन हम कंपाइल कर रहे हैं, एनी रैंडम यूट्यूब वीडियो, ये अपडेटेड करंट अफेयर्स रह गया, ये रह गया, वो रह गया. नो, वी आर गोइंग टू हैव अ स्ट्रक्चर्ड, रेलेवेंट, कॉम्प्रिहेंसिव, ऑर्गेनाइज्ड प्रिपरेशन इन द लास्ट 2 months. We have to give ourselves the best chance of making it in prelims at this time, at this juncture. In April, it will be the most critical time for our preparation. इस टाइम पे हम फॉल्टर नहीं कर सकते. इस टाइम पे हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे. इज दिस क्लियर? ये समझ आ रहा है कि मैं क्यों बोल रहा हूं 31st मार्च? ताकि अप्रैल मई में हम 2 रिविजन्स कर सकें और लास्ट वीक में हम काम रहें, हम उस टाइम पे नई इंफॉर्मेशन इकट्ठी ना कर रहे हों. सो अप्रैल एंड मे वी हैव टू स्टे एज काम एज पॉसिबल. दिस इज ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम दैट आई एम श्योर यू हैव फेस्ड कि यार अप्रैल मई में कुछ भी नया पढ़ रहे हैं, देन बेसिक चीजें भूल रही हैं, देन पैनिक सेट्स इन एंड देन वी गेट आवर क्वेश्चंस रॉन्ग. हैव यू फेस्ड दिस प्रॉब्लम? हैव यू फेस्ड दिस प्रॉब्लम बिफोर? Yes, we don't want April and May to be a time of
वी डोंट वॉन्ट अप्रैल एंड मे टू बी अ टाइम ऑफ एंग्जाइटी। इस टाइम पे बहुत लोग जागते हैं, बहुत लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, वो लोग बहुत गलतियां करते हैं। हम नहीं चाहते इस टाइम पे लोगों को एंग्जाइटी हो। आवर जॉब इज दैट एट दिस टाइम यू शुड स्टे फोकस्ड एंड इन अ क्लियर पाथ कि यार ठीक है, ये मुझे करना है, मैं एग्जीक्यूट करूंगा। नाउ इफ दिस इज टू बी एग्जीक्यूटेड, if this is to be executed, what is the minimum requirement? That if I have to start revising by 1st April, then by 31st March I should have finished everything. 1st April से रिविजन तभी हो सकती है जब 31st March से सब कुछ रिवाइज कर लिया गया हो। So the idea is that by 31st March we have to revise everything. हमें सब कुछ रिवाइज करना है by 31st March। ठीक है, ये माइंडसेट लेके आपने चलना है। प्रीलिम्स इज ऑन 31st March. कीप टेलिंग योर ब्रेन दिस that prelims is on 31st March. Okay, so पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, again I want you to write this on with me. What is the target? What is the target on 31st March? क्या टारगेट है 31st March के लिए? हमें क्या क्या कर लेना है 31st March तक? Number 1, the first thing that is the target is that for all the subjects that I have listed, स्टैटिक पोर्शन शुड बी कंप्लीटेड। सब्जेक्ट्स में यहां लिख देता हूं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड मैपिंग, एमैक, आईआर, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट। यस, इन सब्जेक्ट्स में भी स्टैटिक होता है। स्टैटिक ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स मस्ट बी कंप्लीट ऑन 31st March. सेकेंड, PYQs of all subject must be complete on 31st March. Third, current affairs. ऑर्डर में लिखा है, इट इज रिटन इन द प्रायोरिटी ऑर्डर। करंट अफेयर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स टिल द मंथ ऑफ जनवरी। टिल द मंथ ऑफ जनवरी। सी, फरवरी एंड मार्च करंट अफेयर्स वी कांट कंप्लीट ऑन 31st March. वो अपडेट होंगे, वो हम अप्रैल में ही करेंगे। बट एटलीस्ट 80% ऑफ करंट अफेयर्स आर टिल द मंथ ऑफ जनवरी. सो करंट अफेयर्स टिल द मंथ ऑफ जनवरी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स मस्ट बी कंप्लीट ऑन 31st March. ठीक है, डन. फोर्थ, if there are going to be, these are what, 9 subjects, let's call them 8 because mapping कोई separate subject नहीं है. If I am studying these 8 subjects, at least I should have given 8 full length tests, 8 tests of 100 MCQ each. This is minimum requirement. इससे ज़्यादा टेस्ट होंगे यहाँ पे. If you give more than 8, great, but 8 तो minimum आपने देने ही देने हैं. And this is a optional target depending on your proficiency CSAT. If you are very weak in CSAT, then it is optional for you. Then of course if you are very weak in CSAT, please complete it. If you are very strong in CSAT, engineer हो, maths आता है, मेरी तरह maths weak नहीं है, then CSAT is up to you. This is an optional target, depends on you, but it should not remain a worry. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1st April को मुझे टेंशन हो रही है। अगर ऐसा है कि मुझे आज भी टेंशन नहीं होती, सर मैं तो CSAT का पेपर कभी भी दे दो, मेरे 66 मार्क्स तो आराम से आएंगे, 66 क्या मेरे 100 मार्क्स आ जाएंगे। इफ यू आर दैट पर्सन देन इट्स फाइन, बट इफ यू आर समबडी हु वरीज देन दिस इज ऑल्सो अ टारगेट. प्लीज राइट दीज थिंग्स डाउन. दिस वी हैव टू अग्री टू, दिस इज अ कॉमन मिनिमम अग्रीमेंट. वी हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग बाय 31st March. ये चीजें जो यहां पर लिखी हैं ये 31st March तक कंप्लीट होंगी. देन वी विल हैव द बेस्ट चांस ऑफ पुटिंग आवर best foot forward in prelims, of ensuring that we get the maximum marks that we can. I am not saying you will clear prelims. See, I can't change the number of people who are going to clear prelims. वो तो है ही, that number is fixed. Of course, what we can do is increase our chances. That's what we are trying here. Let's be honest. We are trying to increase and maximize our chances. This, if you complete on 31st March, I am sure you would also agree that if today imagine yourself on 31st March and say that यार ठीक है मेरा ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, you would also be in a very good situation, right? अगर 31st March को ये हो चुका है तो आप कहोगे यार मजा आ गया, अब तो बहुत बढ़िया सिचुएशन है. So now let's make that situation happen for us. आप 31st March तक ये कंप्लीट करो. इसके बाद 2-3 चीजें होंगी. इसके बाद भी आपको रिवीजन करनी होगी इन द मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड मई. आपको फेब और मार्च के करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे एंड आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने होंगे.
और आपको CSAT के टेस्ट देने होंगे। ऑल ऑफ दिस यू लीव टू मी। अभी ये मेरा काम है, आप ये कर दो, ये मैं कर दूंगा, ठीक है। ऑल ऑफ दिस यू लीव टू मी। फेब मार्च करंट अफेयर्स, रिविजन ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, फुल सिलेबस टेस्ट, CSAT टेस्ट, ये जो हमें करने होंगे आफ्टर 31st मार्च, दिस यू लीव टू मी, दिस इज योर जॉब। नाउ लेट अस डिस्कस आवर प्लानिंग फ्रॉम टुडे। अप्रैल में क्या करेंगे हमने देख लिया, टारगेट हमारे सामने है, अब आज से क्या प्लान है ये देख लेते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 2 सब्जेक्ट्स, इकोनॉमी एंड मॉडर्न हिस्ट्री। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 2 सब्जेक्ट्स, इकोनॉमी एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ये 2 सब्जेक्ट हमें करने हैं, ओके। नाउ इकोनॉमी के लिए द टाइम दैट वी हैव इज अ टाइम ऑफ 3 weeks। Economy, we will have 3 weeks. We will divide our day into 2 parts. Every day we will divide our day into 2 parts. आज के टारगेट्स बहुत आसान रखे गए हैं इसीलिए, ताकि आप आज, क्योंकि हम लेट स्टार्ट कर रहे हैं सो इट्स फाइन, बट फ्रॉम टुमारो डिवाइड अ डे इनटू 2 parts. In the morning you can study the subject out of economy and modern history that you find difficult. In the morning do the subject जो आपको इन दोनों में से डिफिकल्ट लगता हो. In the evening do the subject that you find easy. इकोनॉमी का टारगेट है 3 weeks एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमारे पास है 2 weeks. सो वी विल स्टार्ट विद इकोनॉमी. वी विल स्टार्ट विद इकोनॉमी हियर. इकोनॉमी करा, इकोनॉमी कंटिन्यू किया, इकोनॉमी कंटिन्यू किया, ठीक है। ये 3 चीजें हमने 3 हफ्ते हमने इकोनॉमी किया. नाउ फॉर मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री वी हैव 2 weeks. तो मॉडर्न हिस्ट्री हैज टू फिनिश ऑन 7th Feb. ओके. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एनवायरमेंट. यहाँ पर इकोनॉमी तो चल रहा है अभी, फिर एनवायरमेंट स्टार्ट हो जाएगा. एनवायरमेंट हम करेंगे 2 हफ्ते में. आई विल बी टीचिंग एनवायरमेंट टू यू लाइव, सो यू विल बी डूइंग एनवायरमेंट है. इकोनॉमी साथ साथ चल रहा है. इकोनॉमी फिनिशेस ऑन 14th. देन वी स्टार्ट विद ज्योग्राफी. एनवायरमेंट चल रहा है, ज्योग्राफी साथ में होगा. एनीवे दीज सब्जेक्ट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू स्टडी. देन एनवायरमेंट गेट्स ओवर, IR स्टार्ट्स इन प्लेस ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है. Then in the month of March, geography is continuing, science and tech starts. When geography ends, ancient medieval art and culture starts. Ancient medieval art and culture ends, mapping starts. When science and tech ends, polity starts. Polity end में रखा है, assuming that you people have a basic understanding of polity, so it won't be difficult for you. ठीक है, आप polity already कर चुके होगे एक decent level पे. You can do it towards the end. अब यहां पर एक CSAT का भी लेयर आपको दिखेगा. दिस इज ऑप्शनल फॉर यू. दिस इज ऑप्शनल. यू वांट टू डू इट, यू डू इट. यू डोंट वांट टू डू इट, यू डोंट डू इट. दिस इज अप टू यू, ठीक है. CSAT की मैं सेपरेटली बात करूंगा. नाउ यू हैव सीन द प्लान. प्लान में कुछ मिस तो नहीं हो रहा. करंट अफेयर्स का भी बात यहां पे लिखी हुई है सब कुछ ना प्लान में. अब आज से ये प्लान देखना छोड़ दो. स्टॉप लुकिंग एट दिस प्लान फ्रॉम टुडे. दिस इज माई जॉब, इट्स नॉट योर जॉब. Your job is to show up and study. Okay. So in the next week, now from today, from this moment, take this pledge with me that you will think about the fact that prelims is on 31st March and you will only focus on the next week. And that's it. You will execute the current day and not think beyond the next week. उसके आगे का आप सोचोगे ही नहीं. Just the next week in terms of your thinking and just the current day in terms of your execution. ना नेक्स्ट वीक के आगे सोचना है और ना आज के दिन के अलावा कुछ और एग्जीक्यूट करने का ट्राई करना है. कैन वी हैव दिस अग्रीमेंट? प्लान में सब कुछ है, प्लान ठीक लग रहा होगा आपको मैंने एक बार दिखा दिया फॉर योर कॉन्फिडेंस. नाउ डोंट वरी अबाउट इट, इट इज माई जॉब, ठीक है. नाउ जस्ट डू योर जॉब ऑफ शोइंग अप एवरी डे. ओके. नाउ लेट अस नाउ डिस्कस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट वीक. गुड क्वेश्चन. इज दिस अचीवेबल? That's a very good question, Apeksha. Do we have an option? Yes, it's tough. There's no doubt about it. It is tough. If you are starting today, Apeksha, you are my old student. I recognize your name. So, मुझे पता you are not reading this for the first time. आप इकोनॉमी पढ़ चुके हो मेरे से, right? So for you, definitely it's achievable. For anybody who is starting today, सी यार, अगर आप आज मुझे बोलो कि यार आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, आई एम एट ब्लैंक टुडे
and I am going to start preparing for prelims and clear it from 27th January. My answer will be it's not achievable. It's very simple. It's not possible if you start today, right? But the assumption is कि कुछ सब्जेक्ट आते होंगे, जैसे यहाँ पर मैंने बजट किए हैं 3 weeks for economy, but for Apeksha, for example, since I know she's my old student, I know for a fact that it will not take her 3 weeks to revise static portion of economy, right? Similarly, for you, it might not take you 2 weeks to revise modern history, or it might not take you, आपने हो सकता है मेरे से पहले साइंस एंड टेक पढ़ाओ तो आप 3-4 दिन में ही साइंस एंड टेक पढ़ लो, मैंने तो 2 हफ्ते उसके लिए रखे हैं, राइट? मे बी यू आर गुड इन ज्योग्राफी और यू हैव ऑलरेडी डन योर पॉलिटी, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना दैट यू हैव ऑलरेडी डन. माय अजम्पशन इज, मैं तो देखो जो मैंने प्लान बनाया है वो ये सोच के बनाया है कि यार ये 4 सब्जेक्ट आपको आते हैं, ये 4 आपको डिसेंटली आते हैं, ये आपको नहीं आते, इनमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम है, इनमें टाइम कम है. सिंपल लॉजिक. नाउ लेट अस नाउ एक्चुअली स्टार्ट. अब प्रोग्राम समझ आ गया, ओरिएंटेशन इज ओवर नाउ, ठीक है? Our part of orientation is now over. Now we are starting our first mentorship session of what we have to do in the first week. ठीक है? So in the first week, we start in the first week. In the first week, we have 2 targets. So upcoming week, we have 2 targets. One is some part of modern history. One is some part of economy. So what I will do now is I will discuss modern history with you कि यार मॉडर्न हिस्ट्री कैसे पढ़ना है. देन आई विल डिस्कस इकोनॉमी विद यू. एक चीज जो हमारे इस प्लान में रह गई वो करंट अफेयर्स की है. तो अगेन आई विल शो यू ऑन योर पोर्टल. अगर आप यहां जाओगे, राइट, यू गो ऑन योर पोर्टल एंड यू लुक एट करंट अफेयर्स. ठीक है? तो हमने करंट अफेयर्स 5 जनवरी से पढ़ाना स्टार्ट किया था. 5 जनवरी से ये चल रहा है, राइट? सो 5 जनवरी से द करंट अफेयर्स हैव बीन गोइंग ऑन. ये देखो, ये मुदत सर की क्लास है, ये फॉर एग्जांपल मेरी क्लास थी. ठीक है? सो दीज लेक्चर्स ऑफ करंट अफेयर्स आर ऑलरेडी गोइंग ऑन. हर लेक्चर में आपको ये बताया जाता है कौन से मंथ के करंट अफेयर्स हैं, राइट? दिस इज द लेक्चर आई टुक yesterday. Okay, of economy current affairs. I have completed economy current affairs till October already. ठीक है? So ये lectures are already here. These notes are already here. So the idea is simple. Current affairs हम कैसे करेंगे? We will have to find some space in this plan wherever we are, strong in a subject. वहाँ पर हमें थोड़ी जगह निकाल के current affairs पढ़ना होगा. That we have to maybe put in some extra effort because of course can't be that we start everything from today and finish everything and current affairs भी कर लें और ये भी कर लें. टाइम कम है, right? And I don't want any anxiety in the months of April and May. April and May का प्लान चेंज नहीं होगा. जो एफर्ट करना है, रोना है, एंग्जाइटी लानी है, डिफिकल्ट टाइम होगा, वो अभी स्पेंड कर लो. If that time comes in April and May, it will be very challenging. ठीक है? So current affairs, find time in this week. For example, in this week योर इकोनॉमी टारगेट्स आर वेरी बेसिक, बहुत बेसिक इकोनॉमी के टारगेट्स हैं. तो इस वीक आप करंट अफेयर्स के इकोनॉमी के लेक्चर्स देख के खत्म कर दो. ठीक है? ऑल राइट. अब दिस बीइंग अंडरस्टूड, दिस वीक, दिस अपकमिंग वीक, वी हैव 2 थिंग्स टू डू, मॉडर्न हिस्ट्री एंड इकोनॉमी. डिस्कस करते हैं हाउ टू स्टडी दीज सब्जेक्ट्स. पहले इकोनॉमी की बात करते हैं. इकोनॉमी में when you are studying economy, please focus on the conceptual topics. Please focus on the conceptual topics as much as possible. ठीक है? UPSC is not rewarding you mugging up things now. आपने किसी भी टीचर से पढ़ा हो, कहीं से भी पढ़ा हो, जो कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस करो. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नो व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी इज rather than trying to mug up current affairs of 10 years ago. ठीक है? What source to follow? You might have studied from anywhere before today. आपने किसी से भी पढ़ा हो, आप उन नोट्स को प्रेफरेंस दो. Right now you should not focus on new notes.
आपके जो भी ओल्ड नोट्स आज तक बने हुए हैं, दे शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस, राइट। अगर आपने मेरे से पढ़ा है आज से पहले तो वेल एंड गुड, ठीक है। अब लेट से यहां पर कुछ डाउट्स आपको आएंगे, देयर मस्ट बी सम डाउट्स और सम एरियाज वेर यू डोंट अंडरस्टैंड सर। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन, तो मैं अपने ओल्ड नोट से पूरी तरह से पढ़ रहा हूं, ओके। वॉट एवर डाउट आई हैव कि यार ये सब्जेक्ट मुझे, ये पार्ट मुझे समझ नहीं आता, आई गो टू द ऐप, ठीक है, आई गो टू द ऐप एंड और आई गो टू द वेब फॉर एग्जाम्पल, एंड आई सी कि अच्छा यार यहाँ पे इन्फ्लेशन का लेक्चर कहाँ है, वेयर इज द लेक्चर ऑन इन्फ्लेशन, ये रहा इन्फ्लेशन का लेक्चर, मैं इन्फ्लेशन वाला पार्ट यहां से पढ़ लेता हूं, जस्ट द इन्फ्लेशन पार्ट आई विल रीड फ्रॉम हियर, ठीक है, और इसके मैं इन्फ्लेशन के नोट्स देख लेता हूं, दैट्स इट। सो स्टिक टू योर ओल्ड नोट्स, डू नॉट चेंज योर सोर्स। अपना सोर्स चेंज करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, सोर्स चेंज मत करना, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो पढ़ नहीं रहे होगे, सोर्स चेंज मत करना। जहां जहां डाउट है, wherever you have a doubt, wherever you have a doubt, you study from these lectures। जहां डाउट है इन लेक्चर्स को देख लो, राइट। एनीथिंग एल्स जस्ट स्टिक टू दिस, और इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टारगेट्स की अगर मैं बात करूं तो इस वीक क्या टारगेट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। सो फॉर द फर्स्ट वीक फॉर इकोनॉमी व्हाट आर आवर टारगेट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का टारगेट है नेशनल इनकम अकाउंटिंग विच इज जीडीपी, जीएनपी एक्सेट्रा, इसका टारगेट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक्स, बेसिकली व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, ये कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इसका टारगेट है। देन अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी एंड इनइक्वालिटी। सो अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी एंड इनइक्वालिटी, दीज आर द टॉपिक्स यू रीड दिस वीक। नाउ दीज आर नॉट बिग टॉपिक्स, मैं टॉपिक्स प्रॉपरली आपको लिख के दिखा देता हूं यहाँ पे। The topics that we have to study, the topics that we have to study here are माइक्रोइकोनॉमिक्स। इसमें ज्यादा डिटेल में मत जाना, उतने क्वेश्चंस नहीं आते, अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज नॉट द टाइम वेयर वी बिल्ड आवर अंडरस्टैंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, दिस यू रीड। देन अनएम्प्लॉयमेंट, देन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग, बेसिकली जीडीपी एंड जीएनपी। तो हमारे पूरे वीक में दीज आर द टारगेट्स, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड डे बाय डे, टेस्ट भी डे बाय डे के हिसाब से होंगे। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर दिस अपकमिंग वीक, ओके। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो टॉपिक्स हैं ये एक हफ्ते के टॉपिक्स नहीं हैं फॉर समबडी ऑफ योर स्टैचर हु हैज एटलीस्ट एक्सपीरियंस प्रीलिम्स बिफोर, ठीक है। अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो आपको एक हफ्ता लगेगा, नहीं तो ये एक हफ्ते के टॉपिक्स नहीं है, राइट। सो प्लान में एक हफ्ते का टाइम है, बट यू फाइंड एक्स्ट्रा टाइम फॉर योर सेल्फ, यू फाइंड दिस एक्स्ट्रा टाइम फॉर योर सेल्फ, ठीक है। ये एक्स्ट्रा टाइम निकालो खुद के लिए, और ये एक्स्ट्रा टाइम निकाल के यू ट्राई एंड फाइनली जो भी एक्स्ट्रा टाइम निकले उससे डू सम अदर थिंग, जैसे यू कैन स्टार्ट वॉचिंग करंट अफेयर्स लेक्चर्स ऑफ इकोनॉमी आफ्टर यू फिनिश दीज टॉपिक्स। दिस इज नॉट अ लॉट फॉर यू टू स्टडी दिस वीक। सोर्स क्लियर है इकोनॉमी का, क्या पढ़ना है ये क्लियर है, डे बाय डे डिस्ट्रीब्यूशन वी आर अपलोडिंग फॉर यू, ठीक है। इज दिस क्लियर, यहां तक इज इट अंडरस्टूड, यहां तक समझ आ गया। दिस इज इकोनॉमी, डू नॉट स्टार्ट विद अ न्यू सेट ऑफ नोट्स, ठीक है। जो भी ओल्ड नोट्स हैं जहां से भी पढ़ा है उस पर स्टिक करो। जब डाउट होगा कि यार मुझे कोई डाउट हो रहा है, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, मुझे लेट्स से माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ नहीं आ रहा, या मुझे लेट्स से इन्फ्लेशन समझ नहीं आ रहा, मनी समझ नहीं आ रहा, उसके लेक्चर्स यहाँ पे हैं। मुझे यहाँ पे जीडीपी समझ नहीं आ रहा, जीडीपी का लेक्चर देखो, बाकी सब अपने ओल्ड नोट्स पे स्टिक करो और टेस्ट करते रहोगे रोज खुद को। एवरी डे यू विल हैव अ टेस्ट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इन्फॉर्मेशन इज लैकिंग, व्हाट इज मिसिंग। अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। लेट्स स्पीक ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। लेट्स स्पीक ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। यहां क्या करना है, इन मॉडर्न हिस्ट्री
in modern history, our targets this week will be obviously half of the book, तो पढ़ लेते हैं. Okay, so India after Mughals, we start from this. British expansion and consolidation of India, and basically the first phase of the Indian national movement. ये last यहाँ पे लिखा है till 1914. So we start with here India after Mughals, British conquest, British consolidation in India, British rule impact on India, and finally Indian national movement. जो आपको targets आपके उस पे दिखते हैं, उनमें ये targets day by day लिखे आपको ऐसे मिलते हैं. You find targets like this. Tuesday, this is day 1. What are the targets for today? Day 2 targets for today. Day 3 targets for today. Day 4 targets for today. ऐसे आपको targets मिलते हैं. You will see that document being uploaded on your portal. In that document, you would see all of this happening. ठीक है? So this is what we have to do. अब modern history पढ़ना क्या है, कैसे है, उस पे आते हैं, which is very important. How you are supposed to read modern history? Let's come to that. मॉडर्न हिस्ट्री में अभी तक आप लोगों ने क्या सोर्स फॉलो किया है? व्हाट इज द सोर्स यू हैव फॉलोड टिल नाउ इन मॉडर्न हिस्ट्री? देखो, अगेन द लॉजिक रिमेन्स सेम. इफ यू ऑलरेडी हैव अ सोर्स, देखो 3 तरह के लोग होंगे. फर्स्ट पर्सन इज दैट पर्सन हु हैज रेड स्पेक्ट्रम बिफोर. डोंट चेंज नाउ, प्लीज डोंट चेंज नाउ. कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, स्टिक विद इट. सेकंड, अगर खुद के क्लास नोट्स हैं, जैसे लास्ट ईयर के सारथी के नोट्स हैं या हिमांशु खत्री सर के नोट्स हैं, स्टिक विद देम, डोंट चेंज. उतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है कि इसके लिए हम मल्टीपल सोर्सेस पढ़ें. क्वेश्चन आते हैं कम, जो क्वेश्चंस आते हैं, जो आता होता है वो सबको आता है, जो नहीं आता वो किसी को नहीं आता. आप कोई भी सोर्स पढ़ लो, ठीक है. सो स्टिक विद देम, stick with these notes. Do not change your notes now. ठीक है. Now there must be somebody जिसने इनमें से कोई एक, अगर आप इनसे कॉन्फिडेंट हो, टेस्ट में क्वेश्चन हो रहे हैं, कुछ चेंज मत करो. टॉपिक्स लिखे हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ो, उनका टेस्ट दो. कुछ नई इंफॉर्मेशन, देखो आप टेस्ट दोगे, आपको हमेशा मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट में कुछ नई इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी. 2 तरह की चीजें हो सकती हैं यार. या तो मैंने टेस्ट दिया एंड आई एम एबल टू सी कि यार ठीक है, देयर वर 25 क्वेश्चंस इन द टेस्ट, आई न्यू 17-18, 4-5 आर न्यू फॉर मी, दैट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम. 4-5 को अपने नोट्स में ऐड कर लो. सेकेंड थिंग कुड बी, आई सॉल्व मॉडर्न हिस्ट्री टेस्ट, आई ओनली न्यू 4-5 एंड 17-18 वर न्यू फॉर मी. अगर वो स्टेट है तब इन सोर्सेज में प्रॉब्लम है. स्पेक्ट्रम के साथ तो ये हो नहीं सकता, बिकॉज आई रेड स्पेक्ट्रम. आपके क्लास नोट्स मैंने पढ़े नहीं है. इफ दे आर हिमांशु खत्री सर्स नोट्स, आई एम श्योर देयर विल बी नो प्रॉब्लम. इफ देयर इज सम अदर टीचर जिनको मैं नहीं जानता हूं, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, वो आप खुद ही जज कर सकते हो, ठीक है. अब अगर ये जो क्लास नोट्स हैं, इफ दीज आर फीलिंग दैट दीज आर इनसफिशिएंट, ये इनसफिशिएंट हैं और इनसे बात नहीं बन रही यार, ऐसा लग रहा है कि यार इनसे बात नहीं बन रही, ठीक है. सो ऑन योर पोर्टल अगेन यू विल सी ऑलरेडी अपलोडेड लेक्चर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड नोट्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. ये लेक्चर्स हैं जसलीन मैम के, ठीक है. द लेक्चर्स आर अगेन टॉपिक वाइज. जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा वो टॉपिक यहां से देखो कि यार अच्छा मुझे वो पार्टीशन और इंडिपेंडेंस वाला पार्ट समझ नहीं आता, तो सिर्फ ये वाला लेक्चर देखो, पूरे मत देखने बैठ जाना, ठीक है. जहां जहां गैप है बस वो देखना है. सेकेंड थिंग, देन देर आर दीज लेक्चर नोट्स, ठीक है. अब ये नोट्स ऐसे हैं यार, ठीक है. कैसे हैं? टैबुलर फॉर्म में है. दीज नोट्स आर कंप्लीटली इन टैबुलर फॉर्म. दे कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन. जैसे ये पोर्चुगीज रूलर्स की इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन टैबुलेट फॉर्म में है. एमसीक्यूज के लिए जो जो रेलेवेंट है वो यहाँ लिखा है, एंड एंड में इवन पीवाईक्यूज आर एडेड हियर. तो अगर मुझे लगता है यार कि मेरे क्लास नोट्स उतने सफिशिएंट नहीं है, मुझे उतने अच्छे क्लास नोट्स नहीं लग रहे या मेरे को उनसे पढ़ा नहीं जा रहा, यूज दीज एज अ सप्लीमेंट. आप इनको पढ़ के, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन और कहीं नहीं है, ठीक है. मैम का ऑप्शनल भी हिस्ट्री है, मैम ने अभी इंटरव्यू दिया है, सो इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं मिलेगी आपको कहीं. पीवाईक्यूज आर एडेड एंड
मैप्स आर ऑल्सो एडिड फॉर यू टू अंडरस्टैंड। मैम के लेक्चर्स भी यहीं पे हैं, मैम के लेक्चर्स भी यहाँ पे हैं, लेक्चर्स आर ऑल्सो हेयर। मैम ने इन्हीं नोट से पढ़ा रखा है, शी हैज टॉट फ्रॉम दीज नोट्स ओनली। तो आप इनको एज अ रेफरेंस मटेरियल यूज कर सकते हो। यू ईदर स्टिक विद स्पेक्ट्रम, कुछ चेंज मत करो। अगर स्पेक्ट्रम पढ़ने में लग रहा है कि नहीं यार मैंने पढ़ी नहीं कभी, मेरे पास नोट्स हैं, तो अपने क्लास नोट्स पे स्टिक करो। अगर इन क्लास नोट्स में लग रहा है कि ये इनसफिशिएंट है, देन द थर्ड ऑप्शन शुड बी दीज नोट्स एट द सारथी IAS ऐप, जो जसलीन मैम के नोट्स हैं, और यू कैन यूज देम एज अ सप्लीमेंट। अगेन टाइम कम है, नए सोर्स का टाइम नहीं है। डू नॉट चेंज योर सोर्स अनलेस इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। आप इस टाइम पे नया सोर्स उठाओगे 2 हफ्ते में कंप्लीट नहीं होगा, आप शेड्यूल में पीछे फॉल करोगे, आपका बैकलॉग बढ़ेगा। दिस इज नॉट द टाइम फॉर यू टू पिक अप समथिंग न्यू अनलेस इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। कि सर मैंने तो क्लास नोट्स कहीं से देखे थे, उन नोट्स में कुछ भी नहीं लिखा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, देन यू पिक अप दीज नोट्स। अदरवाइज यू डू नॉट हैव टू पिक अप एनीथिंग न्यू। टारगेट्स लिखे हैं, उन टारगेट्स को अपने नोट से पढ़ो, टेस्ट दो। अगर टेस्ट में 50-60% क्वेश्चंस आते हैं, स्टिक विद दोज नोट्स, क्योंकि वो आपने पहले पढ़े हुए हैं, राइट। ओनली इफ दोज नोट्स लेट्स से डोंट हैव वेरी गुड इंफॉर्मेशन ऑन इंडिया बिफोर ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, जो यूरोपियंस बिफोर ब्रिटिशर्स वाला टाइम है कि यार पोर्चुगीज ने क्या किया, तो वो वाला पार्ट यहां से देख लो। सिमिलरली जैसे यहां पे आपको इन्फ्लेशन अच्छे से समझ नहीं आया, तो जाओ जस्ट गो ऑन here and you can look at one particular lecture of one particular thing कि अच्छा यार मुझे सब समझ आता है बट आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ अनएम्प्लॉयमेंट इज मेजर्ड इन इंडिया, जस्ट स्टार्ट दिस लेक्चर एंड सी व्हाट अनएम्प्लॉयमेंट इज। ठीक है, सो जस्ट दिस पार्ट you have to refer from here. Don't start something new at this moment. Don't start something new at this moment. ये बात समझ आ रही है यार? Are you guys understanding this? Please don't start something new now. ठीक है, I am assuming that most of you are experienced. आज के टारगेट्स आप ये देख लो. You can look at today's targets here. I'll getting them uploaded also. This is the target for today. माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडिया आफ्टर मुगल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज्यादा डिटेल में मत जाना, बेसिक पढ़ लो, जहां से पढ़ा हुआ है बेसिक बेसिक ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया आफ्टर मुगल्स स्पेक्ट्रम का भी चैप्टर है, ये आज का काम है। ठीक है, दीज आर योर टारगेट्स फॉर टुडे। टुमारोज टारगेट्स नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, ये अपलोड भी हो रहे हैं, बट आज का टारगेट देख लो। कल जो टेस्ट होगा उसमें इसके क्वेश्चंस होंगे। Don't worry if you don't know a lot of microeconomics. It's fine. They don't ask a lot. They don't ask a lot. समझने के लिए important है. It's not something you have to read in detail, right? So even if you don't know, it's fine. Basic पढ़ लो, जहां से भी पढ़ा है. Source change मत करना. ठीक है? Stick with whatever you have been studying till date. In the last few minutes, what we have discussed is, firstly, prelims is on 31st March. You don't have to plan. You don't have to look at or worry about various things that you have to study. It is my job to plan for you, my job to give you targets, my job to make you revise, our team's job to ensure that you also do previous year questions and you also learn logical guessing. Your job is to just think about the week ahead and the day to day. अब आज के दिन में मुझे क्या करना है? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन स्टेट आफ्टर मुगल्स, बस इंडिया आफ्टर मुगल्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अलावा तीसरी चीज मेरे दिमाग में नहीं आनी चाहिए, राइट? दिस इज द बेसिक मिनिमम थिंग दैट वी हैव टू अचीव ऑन 31st March. इफ वी डू दिस, April and May is sorted. Not everybody who are who is studying here, the set of students who are studying at Saarthi IAS will be able to achieve this target, but those who will definitely be amongst the ones who have the highest chance of clearing prelims. तो जितना भी रोना है मुझे, आप आई एम श्योर एक हफ्ते बाद आप मुझे बोलने लगोगे कि सर ये क्या मतलब है, बहुत ज़्यादा टारगेट्स हैं, अभी बोल लो, अप्रैल में मत बोलना। आपको टेंशन लेनी है, आपको दिक्कत हो रही है, अभी ले लो दिक्कत। दिस इज द टाइम टू टेक स्ट्रेस। द टाइम टू टेक स्ट्रेस इज नॉट इन अप्रैल एंड मे। दैट इज हाउ यू हैव डन थिंग्स you know in the past. So in the past maybe your preparation would have been like this, जनवरी में इतनी, फेब में इतनी, मार्च में इतनी, फिर अप्रैल में सडन स्पाइक। I want your preparation to be
लाइक दिस। कुछ स्पाइक अभी भी आएगा वहां पे, बट इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट, दिस शुड नॉट हैपन, इट शुड स्टे लाइक दिस। ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस ग्राफ इज अ ग्राफ फॉर डिजास्टर, दिस इज अ ग्राफ ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ऑफ कंसिस्टेंसी, ऑफ डिसिप्लिन। दिस इज वॉट आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू अचीव। ठीक है, इस माइंडसेट के साथ कि 31 मार्च तक हमें ये अचीव करना है, ये आइडिया लेके हम चलेंगे। नाउ आई हैव शोन यू द प्लान, आई हैव एक्सप्लेन टू यू द कंप्लीट लॉजिक बिहाइंड दिस प्रोग्राम कि क्या यहाँ पे हो रहा है। रिमेंबर दिस, यू हैव अ एल्डर ब्रदर standing in front of you who is selected, who is looking at your planning and your revision. You can leave these things to me. In my first attempt in the prelims I got 115 marks. ठीक है, in my first attempt when the cutoff was 87, that is 2021, 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। I am doing this planning and revision for you. You don't have to worry about it. Just show up and execute. आज का काम क्या है भाई? माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है और मुझे इंडिया आफ्टर मुगल्स पढ़ना है, बस। कल सुबह का क्या काम है? टेस्ट देना है और ये वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं। टाइम बचा तो मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस देखना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, आप में से कई लोग होंगे जिनको सीसैट को बहुत फियर होता होगा, सो इवन अ रिकॉर्डेड सेट ऑफ सीसैट लेक्चर्स, ऑल्दो सीसैट लाइव भी होगा, मैंने आप लोगों के लिए एक रिकॉर्डेड सेट ऑफ सीसैट लेक्चर्स भी अपलोड करा दिए हैं कि यार अभी टाइम मिल रहा है, अभी मन कर रहा है, कभी ब्रेक है, आज पढ़ाई नहीं हो रही, दीज सीसैट लेक्चर्स ऑफ राम मोहन पांडे सर आर ऑल्सो हेयर। ठीक है, इनमें मेनली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाते हैं, तो ये लेक्चर्स भी ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड करा दिए हैं। ठीक है, जो भी आपको चाहिए टॉक टू मी इन द मेंटरशिप सेशंस एंड आई विल डू फॉर यू। जहां प्लानिंग में दिक्कत है मैं हूं आपके साथ, पूरा प्लान बना चुके हैं। अप्रैल मई के लिए भी बहुत अच्छा कुछ प्लान किया हुआ है कि बहुत तगड़ी रिविजन वहां पर हम कर पाए। 3 टाइम्स रिवाइज करेंगे अप्रैल मई में। टेस्ट बना रखे हैं, अपलोड हो जाते हैं टाइम से, प्लानिंग कर रखी है, आगे का सोच रखा है। जस्ट शो अप एंड स्टडी, डू नथिंग एल्स। और कुछ मत करो, गेट अप एंड स्टडी, और सोचो भी मत, किसी से कंपेयर मत करो अपने प्लान को। आपका प्लान अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते रहोगे, आप अप्रैल एंड मई में 90% एस्पिरेंट से बहुत बेटर पोजीशन में होने वाले हो। नाउ इट इज ऑन यू, नाउ इट इज ऑन यू। अब आप अपना अगर पढ़ाई ढंग से नहीं करोगे, अपने सोर्सेज ढंग से नहीं पढ़ोगे, देन इट इज ऑन यू, दैट आई कांट फिक्स। वो मेरी कैपेबिलिटी के बाहर है। जो भी मैं कर सकता था मैंने कर दिया है। टेस्ट ऐप पे होता है या फिर यू हैव द टेस्ट, इधर इट्स ऑन द ऐप और ऑन द वेब, आपको दिख जाएगा अटेम्प्ट द टेस्ट। ऑनलाइन ऑप्शन भी है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके ऑफलाइन भी दे सकते हो, मतलब यू गिव इट एट योर होम एंड देन यू सबमिट इट, दैट्स अप टू यू। जैसे देना चाहो वैसे दे सकते हो। मैं कह रहा हूँ ना, सारे ऑप्शंस मैंने आपके लिए खोल दिए हैं, आपका काम है पढ़ाई करने का। ठीक है, चलो गाइज, आई थिंक आई शुड गो नाउ। आप लोग भी पढ़ना स्टार्ट करो। अगेन लास्ट मैसेजेस, बस आज का काम, आज का काम हमने देख लिया, आज का तो मैंने बता दिया आपको, मेरा ये आज का काम है, अभी इस पे फोकस करो बस। आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तब तक डेली टारगेट्स वगैरह सब आपके उस पर अपलोड हो जाएंगे। जस्ट टुडेज जॉब, बस ये, बस ये। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइज, थैंक यू।